Hello, everyone. Welcome you back in the topic of mathematics. I know we met, I think, before PT, before PT for revision, we met for mathematics, and after PT, we started with science. And I know that we couldn't meet for mathematics, but now here is the time we are working on the new topic of mathematics, that is triangle. And before we begin the triangle, let me revise few concepts of your lines and angle. The first thing that what we need to know about parallel lines, when two lines are parallel and the transversal intersect the two lines, this forms few angles. This is corresponding angle, isn't it? So what I'm marking all corresponding angles. Then cross and the circle, this one and this one are a alternate angle, and same here dot and triangle is also alternate angles. Circle and triangle, these are interior angles, these are interior angles too. This is what we have seen. Exactly in terms of opposite, in case if I say that this angle is 30 degree and this angle is 30 degree too, then do you think ये दो lines parallel होंगे? Yes, exactly. If the angles are equal, alternate angles are equal, the lines become parallel, and that the property we use is called as a converse of alternate angle. I hope you remember that. Converse of alternate angle, ulta of congruent angle, converse of alternate angle. So that is quite interesting, quite important. At the same time, in case if I say that if there are two lines and we have this angle is equal to this angle, then also in case if it is 40 degree and even this is 40 degree, then we say that these lines are parallel. Again, the same reason, that is converse of corresponding angle this time. So this is a very very important to deal one important thing one should understand of the previous topic. At the same time, angles and property of triangle, uh, addition of that is equals to 180 degree, that we have discussed. At the same time, I hope you remember one more thing we discussed. In case if these two sides are equal, these two angles are also equal. Okay, angle opposite to equal sides we call it as. So if these two sides are equal, like this is ABC, and ये दो sides अगर equal हो, तो उसके जो opposite वाले angles है वो भी क्या होते हैं, equal होते हैं. It's a kind of isosceles triangle. तो base of isosceles triangle, base angles of isosceles triangle are equal. So if this is 60 degree, this also will remain 60 degree. ठीक है, ठीक है, got it. These are the few things which what we needed from a triangle topic. Exterior angle property, like this angle is equals to this angle plus this angle, right? The exterior angle is equals to sum of two remote interior angles. So this is a just immediate interior angle, but except this remaining are these two remote interior angles. So this exterior angle is equals to sum of two remote interior angles. So these are the things we have discussed in a lines and angle. When it comes to triangle, what we have got in the triangle topic, the base of the triangle is congruency. What we have got to study is nothing but congruency. What do you mean by congruency? एक short में we will be discussing about the congruency. Let's understand. Congruency is what exactly? It means if I say that there is a side AB and there is another side PQ. If this length is 5 centimeter and this length is also 5 centimeter, can I say that AB is equals to PQ? Yes, of course. If there's an angle, this is 30 degree and there is another angle looking big, but angle is 30 degree. Here is A, here is B. So can I say that angle A is equals to angle B? Yes, we can say that angle is equals to angle B. May its arms are not matching with the arms of the previous angle, but still angle is measured just by the angle 30 degree, the measure of the inclination, measure of the separation of the initial arm and final arm. This is called as initial arm, this is called as a final arm. So what is the separation, degree of separation of these two angles is nothing but called as the angle. So they are equal, of course they are equal, as they both measured 30 degree. But the same thing, if I want to say that ki ye triangle is equal to this triangle, here is ABC and here is PQR, how can I say that the triangle ABC and PQR are equal or they are same? To understand that, we have the concept of congruency. To understand this, that how these two triangles can be equal, we have a congruency, right? So let's understand, okay, when can the two triangles be congruent? When these two triangles can be congruent. Okay. But before that,
let's understand the meaning of congruency. Imagine there is a right angle triangle ABC with side 6 centimeter and AB as 1 centimeter. Then there is another triangle PQR whose base QR is 3 centimeter and PM as perpendicular is 2 centimeter. So is it possible for you to find out area of triangle ABC? Yes. It will be half into 6 into 1, which will be 3 centimeter square, maybe cm square. Isn't it same way you can find the area of triangle PQR as well, which would be 3 half into 3 into 2, which will be again 3 centimeter square. So what I realized that the area of this triangle and area of this triangle both are same. The area remains same. But do you think the triangles are equal? Matlab, are they looking equal? Of course not. Of course not. They're not looking equal. But yes, the area of this triangle remain same. So area cannot be the parameter to make triangles equal. That I realize. That area cannot be the parameter. So don't you think making triangle similar, making triangle congruent or making triangle equal is not that easy as we have seen making sides or making those angles equal. Okay, it was very direct. Lekin triangle congruency or triangle equivalence or triangle are equal, to say that is not an easy task. So then what is the thing? Then is it possible that we can have triangles equal? Yes, it is possible that triangles can be equal. And as we should not confuse between equal means equal in area, we are using another word called as a congruency. That means when I say that the triangles are congruent, that means it is not just about area, it's everything is equal. What do you mean by everything? Now for example, if I say that the triangle ABC is congruent to, this is a symbol for congruency, ये जो दिख रहा है ये symbol for congruency, equal to sign, and there is some snake like structure above it, is called as a sign of congruency. Is congruent to triangle PQR, is congruent to triangle PQR. That means AB is equals to PQ, BC is equals to QR, AC is equals to PR. At the same time, angle B is equals to angle Q, angle A is equals to angle P, and angle C is equals to angle R. Is this clear? So all the 6 parts of a triangle ABC is equals to all the 6 parts of triangle PQR. Then we call this as a congruency. What we call this as congruency, right? So I say that the triangle, देखो ऐसे लिखते हैं, triangle ABC is congruent to triangle PQR. This is the way how it is written. Writing this is not anyhow, let me tell you, because I can say that angle A is equals to angle P. Can I say that angle A is equals to angle Q? No. It is not equal with any angle of the triangle PQR. It is equal with the specific angle of triangle PQR, and that depend on the correspondence. That means A corresponds to P, therefore angle A is equals to P. B corresponds to Q, therefore angle B is equals to Q. And C corresponds to R, therefore angle C is equals to angle R. Similarly, देखो AB corresponds to PQ, and as that is equal there in the diagram as well. This way of writing the triangle congruency, this equation or this statement of writing triangle congruency equation is nothing but called as a correspondence. This is called as a correspondence. तो आपको ये तो समझ में आ गया कि what is the significance of being things congruent, right? But then is it possible to prove any triangle congruent? ये possible है क्या कि कोई दो triangles को congruent कर सके? तो यहाँ पे मेरे पास ABC है, यहाँ पे XYZ है, तो इन दोनों triangle को हम लोग congruent कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं. I can make them congruent. कैसे कर सकते हैं? By what way we can do? तो एक तो सिंपल सा तरीका है कि इसके तीनों साइड्स को इसके 3 साइड के साथ इक्वल करो और इसके तीनों एंगल को इस तीनों एंगल के साथ इक्वल करो, तो हो गया ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट.
That means 6 part of one triangle should be equal to 6 part of other triangle, and the triangle become congruent. But don't you think this will be a really very tedious job to make two triangles congruent by making all 6 parts equal to all other 6 parts, right? That's the reason mathematics gives us a very simple solution of test of making triangles congruent. आपने देखा होगा कि डिविजिबिलिटी टेस्ट इससे पहले हमने सीखे थे. डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या होता है, जैसे कि 432100950, ये एक नंबर है. इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 2? यस. We don't actually check whether it is divisible by 2 or no. We just check with the test. Similarly, the same number is also divisible by 5. Why it is divisible by 5? Because unit place is 0. So, why I'm not actually doing the division? The same way, we are not going to prove all the 6 parts actually, but yes, there are some tests which can directly prove the same result. Okay, so if you prove those tests, then the triangles become congruent, and consequently the remaining parts of the triangle also become equal. For an example, what are the tests? The first test we have is SSS test. What do you mean by SSS test? All the 3 sides of one triangle is equal to all the 3 sides of other triangle, then the triangle become congruent. I am not at all talking about angle here. Okay, so only 3 parts I am making equal. So if 3 parts are make equal, then other remaining 3 parts will become automatically equal, and the triangle become congruent. Right? नहीं समझ में आ रहा है, चलो देखते हैं. मेरे पास 2 ट्रायंगल है यहाँ पे, जैसे कि ये रहा एक ट्रायंगल, ये रहा दूसरा ट्रायंगल. दिस इज पी क्यू आर, दिस इज एल एम एन. ठीक है, 2 ट्रायंगल मेरे पास. पी क्यू मैंने दिया तो 2 सेंटीमीटर, तो एल एम 2 सेंटीमीटर है, क्यू आर 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये एक अप्रॉक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर है, और ये भी 4 सेंटीमीटर. तो क्या लग रहा है आपको, ये 2 ट्रायंगल के सारे साइड्स इक्वल है. आप बोलोगे एंगल इक्वल नहीं है, वही तो टेस्ट है, एंगल के बारे में चेक करने की जरूरत नहीं है. एसएसएस टेस्ट है, ये 2 ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्यू एंड एम भी इक्वल होंगे, पी एंड एल भी इक्वल होंगे, एंड आर एंड एन भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. ये हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हो जाएंगे. इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं टेस्ट, या इसको क्राइटेरियन भी बोला जाता है. क्राइटेरिया, ओके, इज अ प्लूरल एंड क्राइटेरियन इज अ सिंगुलर. सो एसएसएस टेस्ट वुड बी इजियर वर्ड, तो इसलिए मैं टेस्ट यूज करता हूँ. आप लोगों को क्राइटेरियन सिखाए तो आप लोग क्राइटेरियन यूज करो. ठीक है, तो पहले टेस्ट का नाम है एसएसएस टेस्ट. दैट मीन 3 साइड भी इक्वल हो गए एक दूसरे के साथ, तो वो ट्रायंगल डायरेक्टली कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती. सेकेंड टेस्ट है एसएएस टेस्ट. व्हाट इज एसएएस टेस्ट? 2 ट्रायंगल्स है जिसके 2 साइड is equal to 2 side of the other triangle, and one angle is equal with the other one angle. लेकिन ये जो एंगल है ये इन दोनों के बीच में होना चाहिए. ओके, दिस एंगल इज सपोज टू बी इन बिटवीन द 2 एंगल्स, बिटवीन द 2 साइड्स विच आर इक्वल. इसलिए उसको एस ए एस बोला जाता है. एस एस ए या फिर ए एस एस ऐसे नहीं बोला जाता. इट इज कॉल्ड एज अ एस ए एस टेस्ट. समझ में आ रहा है? आई होप यू आर गेटिंग इट. थर्ड वन है ASA. सेम थिंग, 2 एंगल एंड 1 साइड इन बिटवीन, तो हम लोग उसको ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे. एंड लास्ट एंड फाइनल टेस्ट है AAS टेस्ट, मतलब 2 एंगल एंड 1 साइड. अभी ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि यहाँ पर भी 2 एंगल एंड 1 साइड है, यहाँ पर भी 2 एंगल एंड 1 साइड है, तो इसमें से कौन सी टेस्ट यूज करेंगे. ये सब कुछ हम लोग देखेंगे जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अभी राइट नाउ एक सिंपल से पेज पे इन सारे 4 के चारों टेस्ट के नाम लिख के रखो. लिख लिया? लिख लो, क्योंकि हम लोग एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं. उस एक्टिविटी के बाद हमें ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस का आंसर्स मिल जाएंगे, याद रखो. तो ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पूरे टॉपिक के लिए. ठीक है, लेकिन इसके नाम तो लिख लो पहले. एसएसएस, एसएएस, एएसए एंड एएएस. ठीक है, तो अभी मैं इसको डिस्कार्ड करने जा रहा हूं, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द कंटेंट. ये है आपका पीडीएफ.
जो आपको मैं सेंड कर रहा हूँ, अभी तक मैंने सेंड नहीं किया है, मुझे लगता है बिफोर यू गेट अ वीडियो द PDF विल बी सेंड टू यू, डोंट वरी। ये जो पहले दो क्वेश्चन से हम लोग नहीं करने वाले हैं बिकॉज इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस टॉपिक बेसिकली नाउ एनी मोर, बेस्ड ऑन द टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस, इसकी एक एक्टिविटी करने वाले हम लोग। क्या है ये एक्टिविटी देखेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट वर्किंग। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं मेरा टूल यूज़ करता हूँ, ये रहा हमारा टूल, एंड इसकी ट्रांसपेरेंसी में एकदम 0% कर देता हूँ सो दैट आई कैन सी एज वेल एज आई कैन राइट ऑन इट। आई होप यू कैन सी, इट्स बिट ब्लर बट यू कैन सी इट, इट इज़ विजिबल राइट। चलो देखते हैं। फाइंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इन द फॉलोइंग। आपको देखना है कि इसमें कुछ कॉन्ग्रुएंट है क्या, होगा, ज़रूर होगा, बराबर ना, 100% होगा। तो देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं है। चलो सबसे पहले वाला ट्रायंगल देखते हैं। ये रहा मेरा ABC ट्रायंगल, इसमें से ये और ये तो इक्वल दिया है, ये और ये इक्वल दिया है, मतलब दो साइड्स आर इक्वल। जैसे कि ये ट्रायंगल तो दिख रहे हैं मुझे, और कुछ इक्वल होना चाहिए था, एटलीस्ट साइड इक्वल, दो साइड्स तो नहीं होंगे, मतलब SS ऐसे कुछ टेस्ट तो है नहीं मेरे पास। तो SSS हो सकता है या फिर SAS हो सकता है ना। तो आपने नाम लिखे हुए हैं ना, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इफ़ यू वांट। क्या कहते हैं, SSS, SAS, ASA एंड AAS टेस्ट। तो ये रहे मेरे कुछ टेस्ट के नाम, 4 टेस्ट के नाम जो मुझे रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अभी देखते हैं ठीक से, देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड। SSS टेस्ट तो नहीं हो सकता क्योंकि AB एंड DE के बारे में कुछ दिया नहीं है। SAS टेस्ट के बारे में देते हैं, मतलब कोई एंगल इक्वल है क्या, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, होंगे ज़रूर, क्यों होंगे, VOA। क्या होता है VOA? Yes, exactly, vertically opposite angles. So accordingly I have these triangle and this triangle congruent by this test, SAS test. समझ में आ गया। आपको कुछ नहीं करना है, ये एक्टिविटी में आपको कुछ नहीं करना है, बस समझना है कि बाय व्हाट टेस्ट द ट्रायंगल्स कैन बी कॉन्ग्रुएंट, बाकी कुछ नहीं देखना है, ठीक है। तो मैं सब कुछ एक बार 1 by 1 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ओके। सो यू डोंट हैव टू वरी, डोंट टेक टेंशन। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, मतलब बी। डायग्राम बी में कैसा है, देखो ट्रायंगल ऐसे मिक्स होते हैं, आपको बस समझना है उस चीज़ को कि ट्रायंगल कैसे हम लोग उसको यूज़ करें। तो ये रहा मेरा एक ट्रायंगल पूरा का पूरा, ये रहा मेरा साइड, ये रहा मेरा एंगल विच इज़ इक्वल टू दिस एंगल, और ये इक्वल है। इक्वल क्या पता है, इट्स नॉट लाइक AC इक्वल टू DF है। इक्वल क्या पता है, AD इज इक्वल टू CF है। लेकिन AD जो है वो तो ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, या है, बिल्कुल भी नहीं। ट्रायंगल का पार्ट कौन सा है, AC है। तो आपको क्या लगता है, AD को अगर मुझे AC में कन्वर्ट करना है तो क्या ऐड करना पड़ेगा, ऐसे बस एक सजेशन पूछ रहा हूँ। AD को AC बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, DC। तो दोनों तरफ DC ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा AD प्लस DC इज इक्वल टू CF प्लस DC। आपको पता होगा कि मैंने ये टॉपिक लिया था, कौन सा वाला, यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ये टेस्ट से कैंसिल हो गया था लेकिन फिर भी हमने लिया था। द रीज़न वाज दिस, आपके सिलेबस से ये कैंसिल हो गया लेकिन हमने लिया क्योंकि द रीज़न वाज दिस, क्योंकि इस टॉपिक में बहुत बार आप लोग EDL यूज़ करने वाले हो, यूक्लिड्स ज्योमेट्री यूज़ करने वाले, EDL नहीं, यूक्लिड ज्योमेट्री यूज़ करने वाले बहुत बार आप लोग यूक्लिड ज्योमेट्री यहाँ पे यूज़ करने वाले हो। तो ये रही यूक्लिड ज्योमेट्री, देखो DC ऐड कर दिया। जब हम लोग DC ऐड कर रहे हैं तो देखो ज़रा ठीक से, AD प्लस DC इज गोइंग टू बी AC इज इक्वल टू DC प्लस CF इज इक्वल टू DF। अभी डोंट यू थिंक AC इज नथिंग बट अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड DF इज ऑल्सो साइड ऑफ अ ट्रायंगल विच इज डाउन देयर। अभी देखो ठीक से, ये कौन से टेस्ट से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, यस एग्जैक्टली, अगेन SAS टेस्ट, बराबर है ना। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो ये विजुअलाइजेशन के लिए एक एक्टिविटी ली हुई है, थोड़ा सा विजुअलाइज करो, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसे के ऐसे ही अगेन अगेन हम लोग करने वाले हैं इसके बाद वाले क्वेश्चंस में। ये सब कुछ मैं एक साथ इसलिए लेता हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड इट एज अ कंपैरेटिव वे, इन अ कंपैरेटिव वे, ठीक है। सी देखते हैं, सी में ठीक से देखो बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये सब्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अभी एडिशन वाला कॉन्सेप्ट भी समझ लो। देखो AE इज इक्वल टू AD दिया हुआ है, CE
इज इक्वल टू डी बी, ये भी दिया हुआ है। दोनों को अगर मैंने ऐड कर दिया, ए ई प्लस सी एफ इज इक्वल टू ए डी प्लस डी बी, ऐसे मैं ऐड कर रहा हूँ। डोंट वरी, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है मैं क्यों कर रहा हूँ, ये सब कुछ बाद में समझ में आ जाएगा, यू डोंट हैव टू वरी। ओके, जस्ट समझ लो बस, दैट्स इट। ए प्लस सी एफ क्या हो जाएगा, ए प्लस सी ई होना चाहिए ना, सी एफ क्यों लिखा है, ए प्लस सी क्या होगा, ए सी हो जाएगा। इज इक्वल टू ए डी प्लस डी बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड कि मैंने ऐड क्यों किया, सो दैट आई कुड गेट ए सी कंप्लीटली इक्वल टू ए बी। अगर वो इक्वल है तो ये भी इक्वल हो जाएगा, बराबर है कि नहीं है। सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात। हम लोग सोच क्या रहे थे कि कौन से टेस्ट से ये ट्रायंगल्स कैन बी कॉन्ग्रुएंट, ऐसा है, लेकिन इसमें ट्रायंगल तो पहले ढूंढ ले, ट्रायंगल तो ढूंढ ले। अभी मैं ट्रायंगल आपको दिखा देता हूँ। आपके पास ये एक ट्रायंगल है, I'll just show you with the color. Okay, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। एंड दूसरा वाला जो ट्रायंगल है उसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, और ये है वो दूसरा वाला ट्रायंगल, ठीक है। इफ़ यू स्टिल नॉट अंडरस्टैंडिंग तो मैं क्या करता हूँ, इनको थोड़ा सा, अरे ओके, सेपरेट करता हूँ। सेपरेट कहाँ पे करूँ, यहाँ पे कर सकता हूँ, नहीं, जस्ट अ मिनट है, गिव मी जस्ट 1 मिनट। इसमें लैग आ रहा है, एनीवे स्पीड थोड़ा सा कम हो रहा है। एनीवे इसको मैं सेपरेट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि देखो, ये रहा ए डी सी, एंड दूसरा है देखो ए ई बी। ये समझ में आ गया, देख लो तो डायग्राम को ठीक से देख लो, देख लिया। ओके, अभी देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ए सी तो ऑलरेडी इक्वल टू ए बी है, जो हमने यहाँ पे प्रूव किया है। ए डी इज इक्वल टू ए तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ए डी इज इक्वल टू ए। दैट मीन्स डोंट यू थिंक कि दो साइड्स ऑलरेडी इक्वल है इन केस ऑफ दिस, बराबर है ना। बहुत सिंपल सी बात है, देख लो दो साइड ऑलरेडी इक्वल है, तो बचा क्या, एंगल। और वो एंगल कहाँ पे होना चाहिए, इन दोनों के बीच में, मतलब एंगल ए। व्हाई डू यू थिंक दैट एंगल ए इज गोइंग टू बी इक्वल, कुछ है इंफॉर्मेशन कि एंगल ए कैन बी इक्वल, क्यों। अरे बहुत सिंपल सी बात है, ए तो कॉमन ही दिख रहा है ना मुझे, दोनों ट्रायंगल्स में ए जो है वो एक कॉमन एंगल है, तो कॉमन एंगल तो इक्वल ही रहेगा ना। तो यस, दैट्स द रीजन ए ई बी एंड ए डी सी आर कॉन्ग्रुएंट। ए ई बी, आई रिपीट अगेन, एंड ए डी सी आर कॉन्ग्रुएंट। तो कॉमन एंगल की कॉन्सेप्ट समझ में आ गई, एडिशन वाली कॉन्सेप्ट समझ में आ गई, जो एडिशन क्यों किया। ओके, ये हम लोग और एक बार भी करने वाले हैं, डोंट वरी, डोंट वरी, धीरे धीरे समझ लो। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अभी यहाँ पे तो आपको इजीली समझ में आ जाना चाहिए। देखो, दो ट्रायंगल तो स्पेसिफिकली सेपरेटेड है, तो ये साइड इज इक्वल टू ये साइड, एंगल इज इक्वल टू ये एंगल हो गया। दो एंगल, एक एंगल हो गया, एक साइड हो गया, तो आपको और क्या चाहिए, आइदर एक एंगल चाहिए या फिर एक साइड चाहिए। आपको नहीं लग रहा है कि क्यूएस साइड दोनों में कॉमन ही है। यस, सो बाय एसएएस टेस्ट अगेन दिस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दिस ट्रायंगल्स आर इक्वल और कॉन्ग्रुएंट, ऑफ कोर्स यू कैन से। समझ में आ गया ना, मतलब टेस्ट का अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आ रहा है कि कैसे टेस्ट हम लोग डिसाइड करते हैं, कैसे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बना सकते हैं, ये आपको समझ में आ रहा है। ई देखते हैं, ई देखो, ई में क्या दिया हुआ है, देखो ट्रायंगल की बात अगर हम लोग करें तो ये इज इक्वल टू ये है, और ये साइड इज इक्वल टू ये साइड है, मतलब दो साइड्स तो इक्वल है। और क्या चाहिए मुझे, एक एंगल इक्वल चाहिए, तो एंगल वो होना चाहिए ये वाला, लेकिन वो वाला तो इक्वल नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि उसके बाहर वाला एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल दिया है, बराबर। अब अभी इमेजिन करो ये एंगल 100 है, जस्ट इमेजिन, इमेजिन किया, तो ये एंगल भी 100 हो जाएगा। अभी ये अंदर वाला फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग एंगल, ये लीनियर पेयर, तो 80 हो जाएगा, तो एंगल एम क्या हो जाएगा, 80 अगेन, तो इजंट इट अंदर वाले भी एंगल इक्वल हो गए। हाँ, लेकिन प्रूविंग के लिए हम लोग कुछ भी एंगल वगैरह कंसिडर नहीं कर सकते, तो कैसे प्रूव करेंगे कि अंदर वाले एंगल इक्वल है ना, कैसे प्रूव करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे कि एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल एल एम ओ, लिख लिया, इक्वल है ना, पी आर एस इज इक्वल टू एल एम ओ। देख लो ठीक से, ठीक से समझने की कोशिश करो।
है इंटरेस्टिंग। ओके, थोड़ा सा विजुअलाइज करो, थोड़ा विजुअलाइज करो तो समझ में आ गया। डायग्राम को देखना है, हमेशा डायग्राम को देखना है। कोई भी स्टेटमेंट लिखा ज्योमेट्री में, डायग्राम को देखो, सो दैट आपको समझ में आ जाता है। अगर मैंने ऐसे किया, इमेजिन करो 180 माइनस एंगल पी आर एस इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल एल एम ओ। इससे पहले भी हमने ये चीज़ की हुई है, यूक्लिड ज्योमेट्री में ही किया हुआ है। अगर मैंने 180 सब्ट्रैक्ट किया, नहीं किया तो समझ लो अभी, अगर आपने नहीं किया है तो अभी समझ लो। 180 मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो डोंट यू थिंक 180 माइनस पी आर एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, and 180 minus LMO is equal to angle LMN, and here is the angle equal and two sides are already equal, therefore the triangles are congruent. तो आपको अब तक एक बात तो समझ में आ चुकी होगी कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट गिवन होती है और कुछ कॉन्सेप्ट को हम आपको क्या करना होता है, प्रूव करना होता है। दैट्स इट। एफ देखते हैं। एफ इन एफ क्वेश्चन वी आर ऑलरेडी गिवन दैट कि ये इज इक्वल टू ये दिया हुआ है एंड एंगल भी इक्वल दिया हुआ है, और कुछ इक्वल हो सकता है। हमेशा कॉमन की तरफ ध्यान देना। ये देखो, ये कॉमन दिख रहा है, तो मुझे तो लग रहा है बाय एसएएस टेस्ट ये तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। देखो, मैंने अगर सेपरेट कर दिया, एंगल क्यू है यहाँ पे, एंगल पी है, एंगल आर है, तो ये साइड और ये कॉमन एंगल, तो डोंट यू थिंक एसएएस टेस्ट से ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, है ना। थोड़ा सा सेपरेटली विजुअलाइज करो, इसलिए मैं जो सेपरेट ड्रॉ नहीं करता कभी, लेकिन आप अभी ऑनलाइन चल रहा है तो इसलिए आपको मैं सेपरेट ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, लेकिन इसको विजुअलाइज करो ठीक से। ये है आपका पहला वाला ट्रायंगल और ये है आपका दूसरा वाला ट्रायंगल, ठीक से विजुअलाइज करो। एंगल तो इक्वल है एंड साइड कॉमन है। बाय व्हाट टेस्ट? एसएएस टेस्ट अगेन। आपको ऐसे नहीं लग रहा कि एसएएस टेस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है? यस, बिकॉज एसएएस टेस्ट इज अ एक्ज्यूम, वो एक एक्ज्यूम है, एक मेन बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, टेस्ट है, ठीक है। तो इसलिए एसएएस टेस्ट को ज़रा ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दिया गया है। एनीवे, कोई बात नहीं, बाकी भी देख लेते हैं। अभी जैसे यहाँ पे देखो, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल और ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? दो एंगल तो इक्वल है ही एक ट्रायंगल के, तो और क्या चाहिए? दो एंगल है तो एक साइड चाहिए, 100% एक साइड चाहिए। तो साइड कौन सी हो सकती है? कमन कमन टेल मी। यस, यू आर राइट, बीडी। क्यों बीडी? क्यों? कॉमन साइड, एग्जैक्टली। तो बाय व्हाट टेस्ट यू थिंक द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? एएसए, दिस टाइम एएसए टेस्ट है, राइट? इज दिस क्लियर? गेटिंग इट? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, हमें कुछ दिया गया है कि ये और ये पैरेलल है। इक्वल नहीं है, एरो का मतलब होता है पैरेलल है। हाँ, ये और ये भी क्या है? इक्वल है, ठीक है। दो एक साइड इक्वल है, तो कैन आई टेक दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल? क्यों? यस, अल्टरनेट एंगल। कैन आई टेक दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल? क्यों? यस, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो डोंट यू थिंक दैट एंगल साइड एंगल इज अ टेस्ट? एंगल साइड एंगल, ये रही वो टेस्ट वेयर द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बराबर है, सही है, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कम ऑन कम ऑन, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट में हमारे पास क्या क्या है? ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल है, एक एंगल हो गया। ये साइड इज इक्वल टू ये साइड है, और ये साइड इज इक्वल टू ये साइड है। क्या लगता है आपको, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बाय व्हाट टेस्ट? इज इट बाय एसएएस टेस्ट? बिल्कुल नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जरा एबीसी में देखो, ये जो एंगल है जो इक्वल है वो इन दोनों के बीच में नहीं है, ये कुछ अलग साइड में दिया हुआ है। तो इन दिस केस आई कैन नॉट टेक इन दिस मैनर हाउ आई हैव टेकन जस्ट नाउ। तो क्या कर सकते हैं? वाई डोंट आई कंसिडर दैट दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल? क्यों? क्योंकि क्या है? यस, एग्जैक्टली, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये साइड इज इक्वल टू ये साइड, ये पकड़ो, एंड ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। इसको लेना ही नहीं है। अभी चेक करो, ये कौन सी टेस्ट है? एंगल साइड एंगल है क्या? नहीं है। ये क्या है? एंगल एंगल साइड। एंगल साइड एंगल होती तो ये साइड इक्वल होती, लेकिन वो तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसको, इस टेस्ट का नाम क्या है? एंगल एंगल साइड। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि एसएएस टेस्ट है या एएएस टेस्ट है, लेकिन ये कंफ्यूजन हम लोग बार बार निकालेंगे। डोंट वरी, व्हेन वी स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन हम लोग बार बार इसको निकालने की कोशिश करेंगे। डोंट वरी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको हम लोग बाद में करेंगे जब हम लोग एक्चुअली सॉल्व करना शुरू करेंगे। हाँ, लेकिन के क्वेश्चन को थोड़ा सा देखो। के क्वेश्चन में हमारे पास ये एक मस्त ट्रायंगल है, देख लो, एंड दूसरा ट्रायंगल है ये वाला, दिख रहा है? विजुअलाइज करो ठीक से।
तो इन दो ट्रायंगल में ये साइड तो ये साइड से इक्वल है, ये एंगल तो ये एंगल से इक्वल है, बराबर है ना। बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन और एक कुछ तो चाहिए, तो हाँ यस, ये एंगल कंप्लीटली इज इक्वल टू ये कंप्लीट एंगल, राइट। लेकिन ऐड करना पड़ेगा। चलो देखते हैं वो एंगल के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये एंगल दिया हुआ इक्वल है, लेकिन कैन आई प्रूव दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस कंप्लीट एंगल? यस, उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें पीआरटी को ऐड करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, एंगल का एडिशन थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे तो वो कंफ्यूजन भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलो लास्ट वाला थिंग देखते हैं कि क्या करना है, पता नहीं क्या करना है। लास्ट वाला, सेकेंड लास्ट में क्या हुआ है, कुछ दिया ही नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, ए एफ इज इक्वल टू ए दिया है, ऐसे कंसिडर करता हूँ। ओके, तो चेक करते हैं कि ओके ओके, एक 90 है। जैसे एक ट्रायंगल को कंसिडर करो, इमेजिन करो एक ही ट्रायंगल को, दूसरे ट्रायंगल को देखो ही मत। इस ट्रायंगल में एक साइड इक्वल है उस साइड के साथ, ये एंगल इक्वल है इस एंगल के साथ, और ये एंगल इक्वल है, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखा था हमने, एंगल कॉमन एंगल। तो यहाँ पे इजंट इट, ये कॉमन एंगल है, ठीक है। तो बाय व्हाट टेस्ट डू यू थिंक द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? ASA टेस्ट, ASA टेस्ट, ये वाला टेस्ट। लास्ट में देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लास्ट में ऐसे कोई ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल ऐसे तो दिखाई नहीं दे रहे कि वो कॉन्ग्रुएंट है, नहीं है, है ना। कॉन्ग्रुएंट दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि देखो दिखने के लिए अलग दिख रहे हैं वो, दे आर नॉट सीम टू बी कॉन्ग्रुएंट। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक कंस्ट्रक्शन करता हूँ, जैसे कि मैंने AD को ज्वाइन कर दिया, ऐसे ही AD को ज्वाइन कर दिया। अभी डोंट यू थिंक कि मेरा ये जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू द अदर वन, ये वाला ट्रायंगल, बराबर है ना। ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्यों है इसको देखते हैं अभी। क्यों है ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट? पहले तो ये दो साइड से इक्वल है, फिर ये साइड भी ये साइड से इक्वल, एंड AD कैसा है, कॉमन। बाय SSS टेस्ट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ गया? तो व्हाट आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू डू, आपको करना क्या है आज के दिन में, सारे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे किया उसका टेस्ट आपको देखना है। आज ज़्यादा काम नहीं दे रहा हूँ, पर्पजली नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज कैसा होता है, इफ़ आई स्टार्ट वर्किंग फॉर द क्वेश्चंस, जैसे आगे क्वेश्चंस के लिए मैं शॉर्ट करूँगा और आपको कुछ कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा है, टेस्ट ही समझ में नहीं आ रही, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, ये जो नेक्स्ट वाले यहाँ से एक्चुअल क्वेश्चन जो शुरू होते हैं, ये शुरू करने से पहले आई एम एक्सपेक्टिंग यू ऑल टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड कि डायग्राम को विजुलाइज कैसे करना है, उसमें एंगल कैसे इक्वल होते हैं, व्हाट इज कॉमन एंगल, व्हाट इज कॉमन साइड, हाउ डू ऐड और सब्ट्रैक्ट द साइड्स और एंगल टू गेट द एंगल्स इक्वल। इस सारी चीज़ों को आपको ठीक से समझना है। वीडियो को बार बार देखो सो दैट यू गेट और ग्रास्प द डायग्राम्स। एक बार डायग्राम को आप लोग ग्रास्प करोगे तो थिंग्स वोंट बिकम वेरी डिफिकल्ट, एंड बिलीव मी, आपका ये टॉपिक विल हेल्प यू इन वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक इन योर 10th स्टैंडर्ड, दैट इज सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल। तो ये जो टॉपिक है, ये बेस ऑफ द नेक्स्ट ईयर सिमिलैरिटी है, तो वेरी प्रॉपरली अंडरस्टैंड करो। आज आपका पहला दिन है, हम लोग ज़्यादा काम नहीं करेंगे, लेकिन कल से हाँ बहुत ज़्यादा काम होगा, ठीक है। सो बाय बाय, सी यू टुमारो। आई नो दैट टुमारो इज गणपति, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग यू हॉलीडे, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। बहुत टाइम हमने वेस्ट कर दिया इन रिविजन ऑफ PT, ठीक है। मैंने पर्पजली छुट्टी दी थी सो दैट यू ऑल विल प्रिपेयर फॉर इट, लेकिन अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ओके। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू टुमारो।